Assalamualaikum, welcome to State of the Union for E-commerce. This is your host Priya Bilal. आज हम लेके आए शेख सजावल को इस्लामाबाद पाकिस्तान से. He's a digital marketing consultant and these days he's selling his marketing courses as well. आज हम इनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे कि आप मार्केटिंग कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं और कोर्स सेलिंग के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे कोर्स आप पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडिया. Let's welcome Sheikh Sajawa to the show. Welcome to. Thank you so much, Bilal, for the introduction, and I really appreciate you for having me in this conversation. And I'm looking forward to share all of my experiences and whatever the questions you have for me today. First of all, Sajawa, do share with us. आपने अपना वेंचर कहाँ से स्टार्ट किया? What was your background? और आपको पूरे वेंचर के अंदर क्या hurdles हैं to become a digital marketer? Okay, so Bilal, I started from a software company क्योंकि मेरा ताल्लुक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से था. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. 5वें 6वें सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर का बिजनेस पार्टनर्स के साथ. तकरीबन 1.5 साल वो चलाया था. लेकिन उसके दौरान, उस 1.5 साल के दौरान भी मैं ज़्यादातर जो क्लाइंट की मार्केटिंग साइड की डिपार्टमेंट्स थी, मैं उनको देख रहा होता था. तो बाय द टाइम आई रियलाइज, शुरू में आप स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता होता आप किस चीज़ में बेहतर हो, क्या काम आप अच्छा कर सकते हो, किस चीज़ से आप अच्छे पैसे बना सकते हो, किस चीज़ का बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाना आपके लिए आसान है. तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो बाय द टाइम यू रियलाइज कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और सारा कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है, तब आप फिर अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हो. सो आई डिड द सेम. आई स्पेशलाइज्ड माई सेल्फ इनटू digital marketing with time, and now it's been more than 2 years. Alhamdulillah, I'm particularly looking into marketing. Wonderful, mashallah. अच्छा, Sajawal, who was your inspiration in all this journey? So there are 3 people. One is Zishan Bhai, Hamad Bhai, and Saad Bhai, who are themselves digital marketing, and they have done a lot of inspiring work when they were even at my age, and when they were even younger than me. So I used to sit with them. I used to have tea with them every evening. So from their conversations, their stories, it triggered me to, also jump into digital marketing. And, I also learned from them. Still, I keep, getting mentorship from them. So there are such 3 to 4 people in my very close circle from whom I got the inspiration. Wonderful. अच्छा, सजावल, पूरे मार्केटिंग के वेंचर के अंदर आप क्या समझते हैं कि आपकी टॉप 3 मिस्टेक्स, आपके फेलियर्स क्या थे? व्हाट वाज द लेसन लर्न्ड? आपने कैसे रिकवर किया? डू शेयर विद अस. एक पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फेलियर नहीं है, बस वो ऐसे समझने आपके थोड़ा देर से चीजें रियलाइज हुई. टूल्स का इस्तेमाल करना. मार्केटिंग में फेसबुक एड्स हर कोई चला लेता है, गूगल एड्स हर कोई चला लेता है. मजा तब आता है और बंदा एक्सेल तब करता है इस डोमेन में जब जिसको जितने ज्यादा टूल्स की नॉलेज हो और उसको पता हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है. मैंने फॉर एग्जाम्पल देयर लॉट ऑफ स्पाई टूल्स, ठीक है, जिसमें से आपको कई लोगों के 5 साल की एफर्ट्स होंगी, 6 साल की एफर्ट्स होंगी मार्केटिंग के ऊपर. एंड विद दैट स्पाई टूल यू कैन learn from their last 5 years. So it's a huge privilege, I believe, and this is what I have learned with time after so many years, that you need to be very smart enough to see and to find out that right tool for any kind of marketing campaign. This was the number one thing. Second thing, one, you can call it a failure. I've not been able to make scale my team. This is something I maybe I lack at it, or maybe I couldn't find the right people who from where I can scale my team. So scaling the team has been a challenge, and I'm currently looking into it. The thing that you mentioned, the courses part, that was not supposed to be the you can call it a business or a primary source of income. That was actually so to record everything that I have learned so far, so that मेरी टीम में कोई भी ज्वाइन करता है, इवन मेरे बहन भाई हैं, मेरे टीम मेंबर कोई भी आता है, तो देखें हर बंदे को इंडिविजुअली टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, फिजिबल मॉडल ही नहीं है. तो मुझे वो एक रिपीटेड कह लें कि वो जो एक साइकिल चलता है ना, रेपिटेटिव किस्म का, कि एक दफा की एफर्ट
जो बंदा भी सीखना चाहता है उसको मैं सिखाता हूँ। मेरे अपने बहन भाइयों ने भी उसी से सीखना शुरू किया हुआ है। कोई भी बिगिनर साथ मेरे अटैच होता है जो टीम में आता है तो बंदा मशवरा मांगता है, मैं तो कहता हूँ ये कोर्स है पकड़ लो सीख लो, मैं नहीं सिखा सकता ना, मेरे पास टाइम नहीं है उस चीज का। सो दैट वाज द यू नो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टीम का चैलेंज था, टीम बनानी थी। अब एक टीम को आप हायर करके आपने खुद भी उसको सिखाना, तो बेहतर है वही सारी चीजें रिकॉर्ड करके उनको दे दो और वो सीख लें उससे। सो फॉर एग्जाम्पल टू डेज बैक ग्राफिक डिजाइनर ज्वाइन माई टीम। सो वेरी फर्स्ट डे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको कोर्स में, डिजाइन वाले कोर्स में एनरोल कर दिया। मैंने कहा वो सारी चीजें मैं रिपीट नहीं कर सकता, ये कोर्स है, spend 1 hour on it and you will get all the basics. So this was the reason I started it. Amazing, wonderful. So Jawal, who is your ideal target market for digital marketing? Services business, Yep, इसका पूछना आप। services. I'm particularly UK के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हर लिहाज से। So particularly I'm looking into trying to scale in UK. बाकी मार्केट के लिहाज से मेरा बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। A major chunk of my business model and business development relies on my own network, my personal network, and my social media profile. So यहाँ पे जो बंदा आ रहा होता है, majority of them वो मेरे नाम पे आ रहे होते हैं, मुझे जानते होते हैं। तो यहाँ पे उस तरह की टारगेट मार्केटिंग नहीं, मैं क्योंकि मार्केटिंग में कर ही नहीं रहा, यूके में इस तरह से मार्केटिंग नहीं कर रहा। तो अगर यूके से आता है, पाकिस्तान से आता है, कराची से आता है, तो वो बंदा जानने वाला होता है। कई लोगों को ना भी नहीं की जाती, और ये कि ताल्लुक ऐसा होता है। तो कहने का मकसद है टारगेट मार्केट आप तब डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ, सो इफ समथिंग इज रनिंग इन अ साइकिल, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल के थ्रू, तो वो एक और किस्म का कह लें कि बिजनेस मॉडल है जिसमें आप ग्रो कर रहे हो। Amazing. अच्छा सजावल, आप माशाल्लाह कोर्स भी सेल कर रहे हैं मार्केटिंग का। What are the 3 tips that to give to the people who are selling their course physically? वो अपने कोर्स कैसे डिजिटली सेल कर सकते हैं ऑनलाइन? यार कैसे सेल कर सकते हैं? मैंने एड्स बहुत कम चलाए हैं, शायद 4-5 दिन चलाए थे टू जनरेट सेल्स। अच्छा। देन आई रियलाइज दैट इवन विदाउट एड्स मुझे एड्स चलाने की जरूरत नहीं थी पड़ रही। सो कहने का मकसद ये है कि इन ऑर्डर टू सेल द कोर्सेज और वट एवर यू आर सेलिंग, आपकी उस डोमेन के अंदर कह लें कि ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। सो मुझे अगर मेरे लोग मेरे नाम से जानते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, सो व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केटिंग, when I share that I have released the digital marketing course, so they are very likely to enroll in that course because they already trust me. So this is one reason. So if someone wants to create courses, then make sure that either you already have that audience, or after creating the courses you will create an audience first, because if there is no audience, then it's a different strategy, and then it's a different business model, and you would need a different marketing plan for that. Absolutely. अच्छा सजावल, कोर्स सेलिंग माशाल्लाह कर रहे हैं। How is your experience being a teacher? So I really love doing it, believe you me. After launching the courses, I have regularly started getting paid trainings, right? For different universities. Today, the morning I shared with you, I was giving the digital marketing training to Durshal, Peshawar था या Ahmedabad था। So Durshal के साथ पिछले साल भी ट्रेनिंग स्विच की थी और अभी उनके साथ दोबारा की। इसके अलावा अभी I am also I will also be teaching a full 3 months digital marketing program to Zabist University, ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। उसमें Zabist के जितने भी कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, दुबई में, उन सारों को प्रोग्राम उनको डिलीवर करना है मैंने। So BF Technologies एक इदारा है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज में, which is working on online education. So I am also on board with them as a digital marketing consultant, and I am also looking after all of their digital marketing trainings. They are working with more than 5 to 7 universities in Pakistan, KPK की हैं, Illama Iqbal Open University. So there are a lot of things going on. Amazing, wonderful. अच्छा सजावल, as your courses live classes one-on-one or are they recorded? Recorded, all are recorded. All are recorded. Amazing. I just visited your website and it's look amazing. Mashallah. Very well done. Thank you.
अच्छा सजावल, इस सारे जर्नी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले होंगे जो कि आपको बैक बाइटिंग करते होंगे, आपके बारे में बुरा भला कहते होंगे, एंड दिस एंड दैट्स हाउ टू टैकल विद दैट सिचुएशन? Yeah, recently happened with me. I posted something, I shared my thoughts, and people literally went crazy. Uh, पता नहीं आधे घंटे बाद मैंने देखा 30-40 कमेंट्स हो गए थे, 10 लाइनों से कम का एक एक कमेंट था ही नहीं। मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। द थिंग इज कि इस चीज ने मुझे अपसेट किया, क्योंकि नहीं मेरे साथ पहली दफा हुआ। कि मेरी जिस तरह की नेचर है, मेरे कह लें कि दिल में कोई बात नहीं रहती, मैं लड़ता नहीं हूँ। मैं अगर बुरा मनाता भी हूँ तो मैं 2 मिनट के बाद नॉर्मल हुआ होता हूँ। तो मुझे ना मेरी वो नेचर नहीं है कि मैं किसी से दुश्मनी करूं, किसी को बुरा भला कहूं। समझ रहे हैं आप? तो फिर ये चीज पहली दफा हुई, क्योंकि अब अगर मैं किसी से नहीं लड़ता तो मेरे साथ लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी वेरी गुड एंड सपोर्टिव सर्कल। लेकिन फिर भी कुछ लोग, अच्छा फिर इसमें पता है क्या होता है, जिस तरह आपने लोग बात की ना, लोग बैक बाइट करते हैं। सो द थिंग इज, ये चीज अंडरस्टैंड आपने करने की जरूरत है। आप इतने वैल्यूएबल हो लोगों के लिए, ठीक है? द थिंग इज, इफ यू आर नॉट वैल्यूएबल इनफ, नोबडी विल गिव अ शिट। whatever you will post, if you're not valuable, nobody will comment on your post. Okay, Absolutely. so the thing is, if you talk it, if someone either they are criticizing or either they are giving a good feedback, it means that you have a voice. It means that your voice matters, whatever you are posting. Then it depends. बाजुकात क्या होता है? बाजुकात क्रिटिसिज्म जायज होता है, बाजुकात आप गलती कर जाते हो, ठीक है? मेरी अक्सर औकात ये आदत रही है कि मैं अपनी गलती नहीं मानता, या आप ऐसे समझ लें कि मैं आसानी से नहीं मानता। अल्लाह ताला ने जुबान दी है, बातें करनी आती हैं, तो मैं उन चीजों को कवर कर लेता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। Being a salesperson, because sales is all about talking, having a good communication skill and things like that. So the thing is, लेकिन but I have realized with time, आप being in the, आप प्रोफेशनल लाइफ से पहले होते हो, आप जैसे मर्जी हो, प्रोफेशनली आपको बदलना पड़ता है। So अब with time, what I do is I accept wherever I am wrong, I accept that. ठीक है? तो अब the thing is, आप जो भी बात करते हो, एक चीज थी कि आपके जहन में क्या था जब आप कोई भी बात कर रहे थे, आप पोस्ट कर रहे थे। The second thing is कि what other person thinks about that, and what the other person is having perspective in his mind. So you can change your thoughts, you can have have control of that, but you can never control what the other person is thinking about you. So what I have realized is कि आपने मुहावरा सुना होगा, क्या उसे कहते हैं, आस्तीन का सांप। ठीक है? तो जो लोग आपके बड़े बड़े करीब होंगे, बड़े मीठे मीठे बोल बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा ना, नहीं छोड़ेंगे आपको, आपकी ऐसी तैसी करने की कोशिश करेंगे वो। तो बाज औकात ऐसे वाकया होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जिसमें से ना इस तरह के बंदे आपको पता लग जाते हैं। ठीक है? तो मेरा यही सजेशन है, ऐसे बंदों को ना नोट डाउन कर लो कहीं पे, कि कल को आपको पता होना चाहिए कि ये वो वाला बंदा है जो जिसने उस टाइम ये किया था आपके साथ। सो आपको बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार कौन बंदा किस काबिल है, किस बंदे को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है आपने, किस बंदे से कैसी गुफ्तगू करनी है आपने, और किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है? तो ये वो चीजें, when this thing happened on my social media, उसी दिन मुझे एक बड़ा खूबसूरत कोई 5-6 पैराग्राफ्स का मैसेज आया। ठीक है? She was a lady, she really appreciated me. Obviously I'm human being. When someone criticizes me, it hurts. ठीक है? It matters to me. So I was feeling a little bit down, but when I read that comment, so I might be wrong at so many things, Bilal, believe you me. I understand that मैं कभी इस उम्र में भी हुई नहीं कि मैं अपने ना भाषण झाड़ सकूं, मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकूं। आई एम स्टिल अ लर्नर, alhamdulillah, I'm 24 at the moment, so there are so many senior people around me जो मेरे साथ बात भी करते हैं, लेकिन but the thing is that within this very short time span, alhamdulillah, I have gained that credibility, that brand name in the market, that people trust me. So there must be something good about me जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। सही है?
पहला पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज कि yes, so there are people who will always appreciate you. There will be people who will always give you positive feedback, which is either you are wrong, ठीक है, आप गलत हो, आपको गलत बोलेंगे, आप ठीक हो, आपको ठीक बोलेंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी भी आप ठीक काम करोगे तो आपको ठीक नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आप गलत काम करोगे उस दिन पकड़ लेंगे आपको, ऐसी तैसी करने की कोशिश करेंगे आपकी. सो द थिंग इज यू नीड टू बी केयरफुल. देखो, अगर एक बंदा आपकी पोस्ट पे कमेंट करके आपको अच्छा या बुरा कहता है, सो यहाँ पे बात यह है कि वो बंदा, जब आप कोई अच्छा काम करोगे ना, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना बनता है. ठीक है, किसी भी बंदे को ये हक नहीं मिलता कि हम लोग 10 में से 9, हमने 8 बड़े अच्छे काम किए, हमने कामयाबियां हासिल की, हमने लोगों की मदद की, ठीक है, 9 के बाद एक कोई हमसे गलती हो गई, या आप कह लो कि एक कोई काम अच्छा नहीं किया, तो जिस बंदे ने वो पहली 9 चीजें इग्नोर की हैं और वो एक को पकड़ के अगर मुझे कोई बात करता है, so that is not fair. That is not fair at his end, right? So the thing is, in a nutshell, that you will always have different kind of people with you. कुछ लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको, कुछ लोग आपको समझेंगे आप क्या कहना चाहते हो, जो नहीं समझते ना समझे. नो, nobody really cares. मेरा बड़ा दिल करता है, मेरी आदत है, मुझे कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कमेंट आता है, मैं एक हफ्ते बाद भी रिस्पॉन्ड करूँ ना, मेरी आदत है, मैं हमेशा करता हूँ. 1 महीने पहले वाले मैसेज को भी मैंने रिप्लाई करना ही करना है. अगर टाइम नहीं मेरा तो 1 महीने बाद कर दूंगा, लेकिन करूंगा. उस दिन सारे कमेंट्स का ना एक एक बंदे को जवाब देने का बड़ा दिल कर रहा था मेरा, और वो बंदा आए, गुफ्तगू लगाए मेरे से, मैं बड़े बड़े प्यारे जवाब दूंगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है. बट द थिंग इज, आई वॉज इन माई ऑफिस एट दैट मोमेंट, प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, वीकेंड से पहले काम मैंने मुकाना था. अब इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने कहा यार, मैं हर बंदे को वजाहत नहीं दे सकता. मैंने एक चीज सोची, मेरे जहन में थी, मैंने शेयर की, नहीं पसंद ना करो, पसंद है तो अप्रिशिएट कर दो. लेकिन मैं किसी को जस्टिफाई उस टाइम देने की सिचुएशन में नहीं था. बेला बैठा होता तो मैं शायद हर बंदे को रिप्लाई कर सकता कि यार ये नहीं, ये. लेकिन आई डिड नॉट फेल्ट लाइक आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. सो अगली दफा जब ऐसी पोस्ट करनी होगी तो बिल्कुल ऐसे ही है सजावा भाई. वी नीड दोज पीपल हु एक्चुअली अप्रिशिएट अस. तो ये नहीं कि वहाँ पे बैठे हैं मौके की ताक में कि कब ये गलती करे बंदा और इसके ले. बिल्कुल वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सजावत. What will you say about State of the Union for e-commerce when I'm not there? when you are not there. Yep. It's a tricky question. So being very honest, I don't have been doing, but I appreciate the content that you have been putting on YouTube. It feels like a lot of efforts have been put into this brand name, and it will give me a very good impression. Especially if I talk about YouTube, and it's a very good idea of putting all the content on one platform, because you don't need to distribute all of your audience. Okay, what will you say as a final word? So my final words would be, give your level best to whatever you are doing, because when you are young, when you are start working as soon as possible. This is what I feel like it's missing in a lot of especially students when they are in the university phase. So I believe that I also wasted my time in the beginning. So it's always the best option if you start as early as possible. Number one thing is start early, as early as possible. Second thing is give it your level best. जो भी आप काम कर रहे हैं, खाना पूरी करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, या ड्रामेबाजी ना करें. जो भी काम करना है उसके ऊपर एक दफा जान जरूर मारें. Because when you are not putting your blood and sweat into your work, तब तक रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक वो काम क्या लें कि होता हुआ नजर नहीं आता. सो जान मारनी चाहिए अपने काम पे, जो भी आप काम करें. The third thing is, again there will be so many people around you. बाज़ औक़ात तो आपका 4 बंदों का सर्कल होगा ना, तो 4 के 4 ऐसे होंगे, आपको कहेंगे नहीं फायदा नहीं है, ना कर, छोड़ दे, क्या करेगा करके, तूने बड़ा कर लेना. इस तरह की बड़ी हजार बातें होती हैं. इनको सुनते रहेंगे तो फायदा नहीं है, कभी नहीं कुछ होगा.
सो कोई अगर अच्छी बात सुनाने वाला नहीं है तो फिर खुद अच्छी बात करने लग जाए और अपने आप को सुने. You cannot always have very good people in your circle. So always try to be your own source of inspiration. For example, मुझे अगर कोई बंदा कोई बात नहीं भी करता, so मुझे पता है कि यार सजावल, you don't have any other option other than other than working hard and other than improving yourself every day, other than learning every single thing on your own. ठीक है, I obviously ask questions to other people. I obviously get help from other resources. लेकिन जो कुछ भी करना है ना, खुद करना है. मैंने हमेशा यही एक चीज देखी है, सीखी है. अक्सर लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है कि कोई बंदा हमें गाइड कर देगा, कोई बंदा हमें टीच कर देगा, हाथ पकड़ के एक एक स्टेप. पहली बात तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है. हर चीज कोई बंदा आपको नहीं बता सकता. ओवरव्यू दे सकता है, समझा सकता है, मोटिवेशन दे सकता है. ऐसा करना तो सारा कुछ आपने होता है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी अक्सर ये मिसिंग होती है कि आप हमेशा अपनी टेक योर ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई चीज नहीं आती, कोई स्किल नहीं है, तो वो स्किल सीखना आपका मकसद, आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहाँ से सीखना है, वो रिसोर्स ढूंढना, वो कंटेंट ढूंढना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्किल आ गई, उसके बाद काम कहाँ से आना है. अगर कोई नहीं देता काम, कोई जॉब नहीं देता, कोई प्रोजेक्ट नहीं देता, काम उठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो बडी एल्स इज कंसर्न विद इट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. सो वो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपने आप को ग्रो करना, डेली इंप्रूवमेंट करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो बडी अदर really cares. Bilal, believe you me, there might be, your family members, your very close friends who might actually care for you. लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता. चढ़ते सूरज को सलाम होता है. When you have achieved something, तब बल्ले बल्ले हो जाती है आपकी. So there has been days जहाँ पे I was in my bedroom. I was not talking to anyone else. So the thing is, that was limited to me. My failure, or whatever shit I am facing in my life or my professional career in my business, वो देखो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. अगर कुछ गया तो मेरा चला गया, और अगर कुछ आना भी है तो मेरे पास आना है, किसी दूसरे के पास नहीं आना. सो ये चीज अपने जहन में बिठा ले. nobody really cares. ठीक है. सो you whatever you do, you make sure कि it is good for yourself first of all. ठीक है. So always have keep yourself on the very first priority. एंड आप ठीक होगे, आप अपने साथ फेयर होगे, आपके मामलात ठीक होंगे, हर बंदा आपके साथ ठीक चलेगा. आपकी इज्जत भी होगी, आपको लोग सलाम भी करेंगे, आपके लोग सुनेंगे भी. तो ये सब कुछ तब होता है जब बंदा अपने आप पे मेहनत करता है और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है. Absolutely, absolutely true. एक चीज सजावट मैंने भी ये जिंदगी में एक्सपीरियंस किया ना, इन द लास्ट 3.5 year एक्सपीरियंस इन द डिजिटल वर्ल्ड. बैंकिंग के सिस्टम के अंदर एक काफ़ी मशहूर एक बात चलती है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट. तो सिस्टम को ब्लेम ना करें, सिस्टम इज़ अपनी जगह चलता जा रहा है. अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या मसला है. इम्प्रूव दैट थिंग. Thank you so much, Sajawal, for sharing it. Exactly. Yeah. So one last thing that I would like to add. आपकी इसी बात से सिस्टम की आपने बात की थी ना. I talk about education system and I admit it. ठीक है, मैं बात जरूर करता हूँ. और अक्सर लोगों को जो एतराज होता है मेरी इसी बात से होता है. सजावल तू ये क्या कह रहा है, तू ये गलत बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. द पॉइंट इज कि मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि डिग्री ना करो. अगर आप मेरी ट्विटर के ऊपर जाके पुरानी ट्वीट्स भी देख लें तो वहां पे वाज़ेह तौर पे चीज मेंशन की हुई है कि डोंट रिलाई ऑन इट. Yes. The thing is, rely on yourself and rely on your skills. ठीक है. Degree is a plus point which helps you in so many things, and you are in most of the cases you are nothing without a degree. ठीक है. आपको कोई एडमिशन नहीं मिलता, आप बाहर इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो, बाहर जाना चाह रहे हो, वहां पे 100 चैलेंजेस आते हैं. आपको लोग अनपढ़ कहेंगे, रिश्ता नहीं होगा. आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. डिग्री तो चाहिए आपको. आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, मैंने 2 हफ्ते बाद क्विट कर दिया. मुझे वो चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं लगी और वर्थ इट नहीं लगी कि मैं उसको टाइम दूं अपना. मैंने अब दोबारा मास्टर्स में शायद एडमिशन लूं. ठीक है. लेकिन उसका प्राइमरी जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा दैट वुड बी टू गेट इमिग्रेशन, राइट. सो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था. आप अपना ऑब्जेक्टिव जरूर क्लियर करें. आप डिग्री करने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप पैसे कमाएंगे.
तो आप ये वाली प्रोबेबिलिटी लगाएं कि अगर 50 के BBA या MBA के बैच में से 50 लोग ग्रेजुएट हुए हैं, तो उसका कितने परसेंट हिस्सा है जो अच्छे पैसे बना रहा है, कितने परसेंट हिस्सा है जिसको जॉब नहीं मिली, या अगर जिसको जॉब मिली है तो उसको किस बेसिस पे जॉब मिली है। मुझे लोग कहते हैं जी फलाने मैंने डिग्री की और मैं ये तीर मारूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। मुझे ये बताओ कि किस बेसिस पे वो कर रहे हो ना, कि अगर तुमने वो स्किल अपने घर में सीखी थी और यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के बाद तुमने सीखी थी, ठीक है, और 2 साल का तुमने उस स्किल पे काम किया, तुमने अपना फ्रीलांसिंग करके पोर्टफोलियो बनाया, देन व्हाई आर यू गिविंग द क्रेडिट? जब मैं डिग्री के ऊपर बात करता हूँ तो तुम ये क्यों कहते हो कि मैंने डिग्री की हुई है? आपने डिग्री की थी, आपने साथ साथ अपने आप पे काम किया था, आपने एफर्ट पुट इन की थी, यू डिड नॉट रिलाइड ऑन द डिग्री। सही है, तो दिस इज ऑलवेज माय पर्सपेक्टिव। हैव गुड डिग्रीज, लर्न फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज दैट आर अवेलेबल, जो आपको एडमिशन ऑफर करती हैं, but no matter from where you are studying, skills are very important, or you need to focus on your skills development. अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको स्किल्स सिखाती है, वेल एंड गुड, आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपको अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर मिल जाएगा, वो आपको बड़ा कुछ सिखाएगा। एक लड़की का मैंने पिछले हफ्ते में इंटरव्यू लिया और मेरा दिल खुश हो गया उसकी CV देख के, यार यकीन माने आप, फातिमा जना यूनिवर्सिटी से थी शायद, डिजाइन की उन्होंने डिग्री की थी, और बिलाल बिलीव यू मी, डिजाइन का कोई टूल उस यूनिवर्सिटी ने नहीं था छोड़ा, एनिमेशन 2D से लेके स्केचिंग, 3D, पता नहीं क्या क्या एनिमेशन, सारा कुछ उनको सिखाया, एक एक टूल उनको सिखाया, और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, मैंने उसको, उसके काम को भी अप्रिशिएट किया, और मैंने कहा सल्यूट है इन टीचर्स को और इस यूनिवर्सिटी को जिन्होंने इतना उनको कैपेबल किया कि आज मैं इंटरव्यू में आके बैठी तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिसिंग ना हो। तो यहाँ पे दैट वाज अ प्लस पॉइंट। इफ योर डिग्री इज टीचिंग यू स्किल्स, वेल एंड गुड, 100 दफा उसको टाइम दे, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे, फोकस करें उस पर, बट इवेल्युएट करें कि जो कुछ आप सीख रहे हैं उसका आपको अल्टीमेटली रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल कैरियर में कितना फायदा हो रहा है, या फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो तब स्कोप क्या है, हाउ वुड इट लुक लाइक आफ्टर यू ग्रेजुएट। if you are in the 7th or 8th semester and if you don't even know the skills that you have, जब आप अपनी CV लिखने के लिए बैठे हैं और आपको अब स्किल्स वाले सेक्शन में आप सर पकड़ के बैठ गए और आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे स्किल्स में मैंने क्या लिखना है, तो बिलाल देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू नीड टू एडमिट दैट। एंड माय फिलॉसफी इज कि जब तक आप एडमिट नहीं करते हो किसी चीज की बुराई को, किसी चीज के गलत होने को, तब तक आप ग्रो ही नहीं कर सकते यार। क्योंकि जो आपने ब्लंडर मारा है, जो आपसे गलती हुई है, या जो नहीं था होना चाहिए वो हो गया, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उस चीज को इम्प्रूव कैसे करोगे? गलत हो गलत मानो और फिर जो सही वाला रास्ता है फिर उस पर चलो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार 4 साल दे दिए, नई स्किल सीखी कोई, या 6 महीने जाया हो गए, द पॉइंट इज एक्सेप्ट दैट यू वेस्टेड टाइम, you learned nothing, then it will give you a motivation that I have wasted enough time and now I don't have any margin to waste any more time. So now you will even be more focused towards learning those new skills and to to work on those skills. सलोनी सजावल, अभी मेरी लेट मी शेयर, 2 दिन पहले अभी मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, 2 दिन पहले। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि आपको यूनी लाइफ जो है, 4 साल की अगर डिग्री कर रहे हो, स्टार्टिंग पे बैचलर्स कर रहे हो, तो आपका 1 साल है वो आपको एंजॉयमेंट के लिए मिलता है, आपके जो 3 साल है वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मिलते हैं। उसको इवन दो आपका यूनिवर्सिटी कुछ नहीं सिखा रही, अपनी सेल्फ बेस पे लर्न करें, सीखें, खुद जाके मार्केट में निकलें। बिकॉज ये जो आपके पास हार्ट बीट्स है ना आपकी, टाइम का तो आपको सबने बताया कि भाई आपका टाइम है, आपके सेकंड इज मनी, तो इसकी हमने कभी वैल्यू नहीं की। चले मैं आपको कहता हूँ भाई, आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो आपका सबसे बड़ा एसेट्स है। आपको पता चल जाए आपके पास सिर्फ 100 हार्ट बीट्स रह गई हैं, आप मरने वाले हो सजावत, ठीक है। और आपको अल्लाह मियाँ ने एक अथॉरिटी दी है कि भाई आप मेरे से कुछ सांसें मांग सकते हो, तो क्या आप मुझे अपनी जितनी आपने जमा पूंजी आप मुझे देने के लिए तैयार हो गए? जस्ट टू टेक, 100%। ठीक है। Yes. सो और हम लोग पाकिस्तानी लोग भी ऐसे हैं यार, हम लोग डॉलर को बड़ा वैल्यू करते हैं। इस वक्त डॉलर की वैल्यू अराउंड 154 पाकिस्तानी चल रही है ना। सो एक छोटा सा मैच करते हैं सजावत। पिक अप योर फोन इफ यू हैव इट राइट नाउ। कैलकुलेटर खोलना है? श्योर। जी बताएं।
अच्छा जी, 1 सेकंड में बंदा 60 हार्ट बीट्स रिलीज करता है, राइट और रॉन्ग? Maybe right, I'm not the medical student. ओके, 1 सेकंड में 60 रिलीज करता है, दैट्स 1 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, यू रिलीज 36,000 सॉरी 3600 हार्ट बीट्स इन जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1 आवर से, 1 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, 60 मिनट से 1 घंटा, ठीक है। अच्छा जी, 1 घंटे में हम 2,16,000 हार्ट बीट्स रिलीज करते हैं। अच्छा जी, अब इसके थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे, मल्टीप्लाई इट विद 24, हाउ मच इज द फिगर? सॉरी, इट्स वो पता 51 है, लाख 51 लाख 84,000, बनता है, हाँ हाँ। 51 लाख 84,000। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करें डॉलर के साथ, इस वक्त डॉलर की वैल्यूएशन 154 के करीब चल रही होगी। कैलकुलेट तो कीजिएगा जरा, कितना फिगर है? सरप्राइजिंग, 10 करोड़, 80 करोड़ के करीब। 80 करोड़ रुपया हम एक दिन में इन्वेस्ट करते हैं 24 घंटों में। सो दैट्स आई वैल्यू योर सेल्फ योर हार्ट बीट्स। 80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अल्लाह मियां ने आपको दी है। आपको कहते हैं गरीब आपको पैदा किया, अल्लाह ने कभी गरीब नहीं किया पैदा। अल्लाह ये कहता है मैं आपको 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, वो कैसे चाहेगा मैं आपको गरीब पे पैदा करूँ? 80 करोड़ रुपए की आप इन्वेस्टमेंट डेली करते हैं। सो वैल्यू योर टाइम, योर मनी, योर हार्ट बीट्स। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप तो भाई 100 रुपया किसी को देना हो तो बड़ा सोच समझ के देते हैं कि 100 रुपया जा रहा है, यहाँ पे तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मेरा सजावल तो मैंने अपने 4 साल के पीरियड के अंदर मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। उसके अंदर सिर्फ मैंने 1 साल एंजॉय किया और उसके बाद फिर मेरा प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हो गया। और अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल मैंने डिग्री साथ साथ कंप्लीट की। अच्छा, डिग्री ना करने का नुकसान भी सबसे बड़ा है। 2 साल पहले मेरे सामने सिस्टम की सब कुछ खुल चुका था कि इस डिग्री का मुझे कितना फ़ायदा है, ये जो मुझे इधर पढ़ाया जा रहा है डिग्री के अंदर, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसका फ़ायदा क्या है रियलिटी में। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं अपने घर वालों के साथ लड़ता था पर्सनली, अपने पेरेंट्स के साथ भी, भाई मुझे डिग्री नहीं करनी, इसका फ़ायदा ही नहीं है मुझे, ठीक है। एट दैट टाइम माई मेंटर कॉल्ड मी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ब्याह कराना कि नहीं कराना, बुढ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए पढ़े लिखे घर में। ठीक है, तो ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें बाहर भी अप्लाई करना है हमें डिग्री चाहिए होगी। सो ये इट्स ओके। एंड अगेन आई रिपीट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, सिस्टम इज ऑलवेज राइट। मसला आपके अंदर है, आइडेंटिफाई दैट। जैसे सजावल ने कहा कि स्किल सीखें, अगर वो नहीं सिखा रहे आप खुद अपनी सेल्फ अपने बिहाफ पे सीखें, बिकॉज यहाँ पे करोड़ों का मामला है, 100-200 का मामला नहीं है। एनीथिंग यू वांट टू कोट सजावल? आई थिंक गुड फॉर नाउ, यही बातें भी सारी अगर हम समझ लें तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर वन डे, Yes. एंड I really enjoyed the conversation. I think you're shocked seeing this figure. नहीं, I liked it. I liked it. अच्छा लगा मुझे देख के. Wonderful. Thank you so much for detailing core insights about the marketing and industry. बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। See you in the next episode. अल्लाह हाफिज़।